क्या आप उनमें से हैं जो अपनी बॉडी बनाने में लगे हुए कंटिन्यूसली डाइट करते हैं, खाना खाते हैं, वर्कआउट का तो पूछो मत, दिन भर वर्कआउट करते हैं, स्पेशली अबाउट द जेन जी एंड द मिलेनियल जनरेशन? मोटिवेशन कौन है? क्या आपका मोटिवेशन बॉलीवुड स्टार्स है लाइक जानवी कपूर, सारा अली खान, शाहरुख खान और मे बी अनिल कपूर जिनका बॉडी फैट परसेंटेज 9%, आई गेस दैट्स व्हाट ही सेड। अगर आपके ऐसे गोल्स है, इफ यू हैव गोल्स लाइक दिस एंड यू वांट टू अचीव अ सर्टेन बॉलीवुड बॉडी, और लेट्स से अगर आपको अपने बॉडी का ध्यान रखना है या फिर फिट टोन बनना है, then you will definitely like today's show because आज के एपिसोड में we are going to give you some inside tips, some good eating tips, some workout tips which is going to definitely help you. So do watch the show till the end. फिटनेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्कआउट्स, एंड पर्टिकुलरली इफ यू आर elderly person, taking care of your bone health is extremely important. So apart from taking care of bone health, which works wonderful with weight lifts, your mental health is also very important, and there are so many studies which have shown that how and doing any kind of workout, whether it is aerobics, weightlifting, going for walk, swimming, anything boosts your mental health. बट आई नो सबको ये बहुत चैलेंज आता है कि काम के साथ आप यू हैव योर ऑफिस, आपको काम पे भी जाना होता है, तो वर्कआउट का टाइम कब निकालें? एंड स्पीकिंग अबाउट मी, मेरे को तो बहुत दिक्कत आती है, लाइक माई डे बिगिन्स एट 6 o'clock, बट इट इज़ सो हार्ड फॉर मी टू गेट इन द कार एंड रीच टू द जिम, बिकॉज ऑफ कोर्स आप जिम ही जाओगे जब वर्कआउट करना है, मेरे लिए वही काम करता है, बिकॉज आई लव द एनर्जी है। बट इट बहुत मुश्किल मुझे होती है टू गो टू जिम एवरी डे, एंड लेट्स टॉक अबाउट लाइक फीलिंग लेजी। मैं सो मेनी टाइम्स मुझे लेजी फील होता है। आई रियली वंडर दैट हाउ अबाउट अगर हमारे पास होम जिम होता। आई नो होम जिम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है द प्राइजेज, बिकॉज आप जिम लेके तो आ जाओ मशीन, बट लेट अस नॉट टॉक अबाउट द एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स. So let's ask Kanna Bora, who is a fitness expert today, that how to create an affordable home gym. So Kanna, most welcome to the show here. हमारे दर्शकों को आप ये बताइए that how should one create a sustainable yet very user friendly and price friendly, pocket friendly home gym. First of all, hello everyone, and let me just tell you, making a home gym should not be that expensive, which we think that we have to invest in so many equipments, heavy machinery, we need a lot of space. A pair of dumbbells and a yoga mat is sufficient enough to do most of our exercises. अच्छा, एक pair of dumbbell और एक योगा मैट से आप सारे बॉडी पार्ट्स को कवर कर सकते हो वर्कआउट के लिए. It is about the techniques which we do it. ठीक है, जिम जाते हैं, हमारे को मल्टीपल डंबल्स दिखते हैं, हम शुरू करते हैं 2 kg से, धीरे धीरे वो 20 किलो बन जाता है हमें. ये तो मैंने देखा है. हमें लगता है वो प्रोग्रेस है, पर डूइंग द सेम एक्सरसाइज जो हम 2 किलो से कर रहे हैं वही 20 किलो से भी कर रहे हैं, पर एक टेक्निक उसमें डाल. एक टेक्निक होता है टाइम अंडर टेंशन. उसमें क्या है, कीप द मूवमेंट्स कंट्रोल्ड एंड फोकस ऑन दैट मसल मूवमेंट. Even if you're able to do 20 kgs of bicep curl, do it with 2 kgs or 5 kgs and slowly just reduce the movement. The muscles are getting under tension. Okay. So that is one technique which people should definitely apply at home if they are focusing on home gyms. And definitely in our programs we've been doing this kind of techniques and seen a lot of results, live results, and people have been sharing it with me also. Oh wow. So sharing just a pair of dumbbells and a yoga mat is sufficient to start with your fitness journey if you're focusing on strength training. That's amazing, Kanna. I would like to know in detail more. But then जैसा आपने बताया कि slow movement it works very very good, right? In fact, मैंने पढ़ा भी है. In fact, I heard to a lot of fitness gurus who like fitness gurus. They speak that आप कोई भी workout अगर कर रहे हो तो बहुत धीरे धीरे, जो पुश वाला लोग बहुत धीरे करते हैं एंड देन पुल वाला बहुत जल्दी करते हैं, और वाइस वर्सा. बट आपको सेम स्पीड मेंटेन रखनी है पुश में भी और पुल में भी. इज दैट सो? इसका अगेन जैसे आपने बोला ना, इसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं. वो पुश पुल वर्कआउट में भी अगेन देयर इज लॉट ऑफ
डिफरेंट साइंटिफिक रीजंस क्या कहते हैं, हम इसको किसी तरह सेंट्रिक मूवमेंट्स भी कहते हैं। अच्छा। वेयर वी बेसिकली ट्राई एंड गो डाउन स्लोली, लाइक जैसा आपने बोला, एंड वी जस्ट पुल ourselves a little faster, like for example in a push-up position, slowly आप नीचे जा रहे हो, this really helps in building tension in your muscles. Oh. But immediately आप just push करते हो, अपना आपको body को ऊपर लेके आ रहे हो, that's a different, you're pulling the floor down and pushing your body up. Yeah. Basically, so you are again focusing the muscle at the same time, and on the other hand आप जैसे slowly अगर नीचे जा रहे हो, fast ऊपर आ रहे हो, वही आप नीचे जा रहे हो, fast slowly ऊपर आ रहे हो. So everything which we are doing focuses on your muscle only. Yeah. It's just a technique and a way of building your different muscle strength. I mean great. I mean definitely ये सारे tips किसी को बहुत ही carefully follow करना चाहिए, because if you want to avoid muscle injury or any other kind of injury, you have to be very careful with your movements. This is the most important thing, which is with everything. Workout हो, heavy weight lifting हो, aerobics हो, even with your walks, one should be very mindful कि आप किस तरीके से walk कर रहे हो. There are so many information about walks कि कैसे core hold करके walk करना है, कैसे आपके feet के angles चाहिए, रहने चाहिए. I'm sure all those information we would provide you gradually. But today I want to know that क्या तरीके हम use करके हम home gym किस तरीके से बना सकते हैं. तो अगर सिर्फ शुरुआत कर रहे हो तो आपको कोई इक्विपमेंट की नहीं जरूरत है. आपका बॉडी वेट सफिशिएंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए, एंड आपको कार्डियो करने के लिए भी ज़रूरत नहीं है कि ट्रेडमिल लेके आए या एक स्पिन बाइक लेके आए. यू कैन डू विद जस्ट एन एरिया ऑफ 5x5 ऑल्सो. ओके. आपको सिंपल एक मूवमेंट्स है, बॉडी वेट मूवमेंट्स है. आप स्क्वाट्स करते हो, स्क्वाट्स के साथ हम डंबल्स उठा लेते हैं. वो क्या करते हैं, बेसिकली जस्ट एडिंग लोड टू द मसल्स, बट आपका बॉडी वेट भी एक लोड की तरह काम करता है. सिमिलरली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, यू डोंट हैव टू जस्ट थिंक कि मेरे पास ये इक्विपमेंट नहीं है या पहले मैं ये मैट खरीद के ले आता हूँ. इफ यू मेड अप योर माइंड, आई थिंक इट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट नाउ. Right. So if you're starting now, get onto it. Start with the lightest of the movements. Even if 10 minutes of the workout you are doing, it's good enough. हम एक ना 10-minute rule की बात करते हैं हमारे प्रोग्राम में, which is being applied by many, and उससे बहुत लोगों को रिजल्ट भी मिला है, जिसे हम सिंपल कहते हैं. If there will be days when आपका मन नहीं करेगा शो अप करने के लिए. Absolutely, मेरा तो बिल्कुल नहीं करता. होता है धीरे-धीरे बॉडी एक्चुअली गिव्स अप, especially if you are just starting. हमारे माइंड में बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है कि इस बात के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बॉडी को थका रहे हैं. पर हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उसका जो होता है, इफ वी हैव दैट इन माइंड कि हमारे को वर्कआउट करना है टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द फैमिली, to actually be able to do household chores ourselves for a longer time, to play with our kids more happily and more energetically. So these are one of the goals which cannot be measured in terms of the scale जो हम बाकी चीज़ों में इंच लॉस, वेट लॉस पे कर सकते हैं, बट प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल. सिमिलरली जो 10-minute रूल की हम बात कर रहे थे, वही मैं बोल रहा था, बहुत दिन ऐसे होंगे आपका मन नहीं करेगा वर्कआउट करने का, शो अप करने का. उस दिन में आपने सिर्फ एक कंसिस्टेंसी के लिए, सो दैट आपका डिसिप्लिन मेंटेन हो. मैं ये बोल के आता हूँ कि मैं 10 मिनट कुछ ना करके सिर्फ ये मूवमेंट्स करता हूँ, सो दैट माई बॉडी इज वर्किंग. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ये करोगे, आपका रूटीन बना हुआ है, आपको कोई शेड्यूल है कि आपने पर्टिकुलर वर्कआउट फॉलो करना है. बहुत बार आप 10 मिनट से ऊपर वर्कआउट करोगे, एंड यूजुअली अगर आपको वर्कआउट शुरू किया, एनर्जी पंप इन होती रहेगी और आप वर्कआउट कंप्लीट ही करोगे. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू शो अप. आप किसी भी चीज़ को, कोई भी अपना गोल बनाओ, काम का गोल बनाओ, कुछ एम बनाओ, कुछ सर्टेन काइंड ऑफ बॉडी बनाओ, फिटनेस बनाओ, और इन जनरल आपको अपनी तबीयत का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू शो अप एवरी डे टिल द टाइम इट बिकम्स अ हैबिट. सो दैट्स अगेन अ होल डिफरेंट टॉपिक कि कैसे 25 दिन में आप अपना हैबिट फॉर्म कर सकते हो. फॉर दैट you can check the next video, but right now Kanav is speaking about that how to do a home workout, where we need one yoga mat, and the second one, Kanav, what do we need more? If you want to increase the resistance, get onto a pair of dumbbells. Oh, lovely. Otherwise your body weight resistance is good enough to start your workouts at home immediately. So let's say एक हमने डंबल लिया, or you can do with your body weight workout. Right. But I know a lot of time question ये आते हैं जिनका थोड़ा body weight ज़्यादा होता है, let's say after certain number उनका बहुत overweight होता है, and they feel that हम कैसे करें because they are not able to handle their body weight. So what do you guide them? To start with, हर workout का ना एक हम
बिगनर लेवल वाला जो जिसको हम कहते हैं, you can start with any physical appearance you are in right now. Correct. Sitting on a chair, if you're not able to stand for a longer time, sitting on a comfortable chair and doing slight movements, जो मैंने अपने पेज में बहुत बार शेयर भी करा है. For those people who have a desk job, जो लंबे टाइम तक 8-9 घंटे के लिए they are sitting on a desk, how they can actually just stretch their muscles to keep their body active during the day and release that muscle tension is one of the things to do. It is not necessary that you have to always put your body under extreme pressure कि मेरे को ये करना है, मेरे को ऐसे करना है. It is just about starting. जब एक बार आपने शुरुआत करी है, then the journey will follow. So having the right mindset that yes, okay, if I am X kgs right now and I want to get into X minus Y, जिनका जो target होगा, how to reach there, the journey जैसे define करना है ना, that is more important. Yeah. Just saying कि मेरे को वो achieve करना है, अब किसी ने एक goal बना लिया, I want to lose X kgs in 1 month. But वो कितना realistic है? Exactly. Is very important. Yeah. And during the journey वो और कितने progress parameters पे focus कर रहे हैं, whether it is about feeling good about oneself, making that better relationship with food, making that better mindset कि ठीक है, I'm feeling happy, stress कम हो रहा है, I'm able to give that 15 minutes also, half an hour or 40 minutes, जो जितना भी workout कर सकता है, to myself. Yeah. And that is their meditative state at that point. Exactly. I mean, I love the idea of, where you said that, कि chair पे बैठ के भी हम, अच्छे से stretching कर सकते हैं. It's not necessary that आपने एक goal बना लिया है, just उसकी तरफ भागते जाना है. The journey is important. In fact, मैं अपना एक share करूँगी personal that at our workplace, because we all reach at office at 9:30, including my team, which is over here also. And we have desk job. मेडिकल में प्लस माई टीम, वी ऑल हैव डेस्क जॉब. सो इनफैक्ट हमने वीक में 2 बार एक रूटीन बना लिया दैट एवरी वन हैज़ टू गेट अप. हम सबका अलार्म बजता है, एवरी वन वी गेट अप and then we do certain kind of very basic stretching, like doing this and doing this, and then we walk around, because long hours of sitting is damaging, I'll say that. So yeah, if you have a capability or if you have time to move around, just move around, do some stretching, and I think that also brings a lot of change. Lot of change. At least जो muscle tension है वो release करता है. And जो आज की डेट में this one very major happening which is many of the corporate people are facing, they are facing back pain. Yeah. And they have said because of long sitting hours. The reason is because it is not like कि आपने 8 घंटे ऑफिस में करना है, 9 to 5 वाली अगर जॉब है तो आपने उतने देर तो बैठना ही है. Yeah. Even just getting up and strolling for 2 minutes within your office space, as I said, आपको बहुत ज़्यादा लंबी जगह नहीं चाहिए. Strolling for 2 minutes and just moving your muscles, just moving your joints will really help in releasing that tension. Yeah, वो जो आपका long sitting hours में जो अपने muscles पे, bones पे pressure डाल रहे हैं, जो हम एक ही जगह बैठे रहते हैं, they are getting under pressure. So it will just help in releasing that. So I don't think even the senior managers will mind people just getting up for 2 minutes after every hour, going for a stroll, or just get up, go to your colleague, talk to them, build that interpersonal relation with them, just talk about how their life is it's going. It's important to keep outside moving. the office side also. I think it's really, really important. Outside the office चले जाएंगे तो काम कैसे होगा? Outside the office, just talking. It's just a way of using that 2 minutes to relax, because with your muscles, even your mind needs relaxation. Yeah, you need to give break. You need to, because to get energized, you need to cut down that thought and come to different thought. Yeah, that's the idea. So kind of आप फिटनेस के तो you are an expert, जहाँ आप बताते हैं लोगों को किस तरीके से वर्कआउट करना चाहिए. बट मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कि ड्यूरिंग द वर्कआउट दे स्टार्ट फीलिंग, जिनके क्वेश्चन होते हैं ना पर्टिकुलरली दैट ड्यूरिंग द वर्कआउट वी स्टार्ट फीलिंग वेरी लो, क्रैश लगता है हमारे को, बट पोस्ट वर्कआउट उनकी एनर्जी कम हो जाती है. पर्टिकुलरली स्पीकिंग अबाउट फीमेल्स हु आर अराउंड माई एज, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, तो
with me, I sat down with my sports nutritionist, and she gave me a very elaborative, very in detail plan कि आपको ये करना चाहिए, very nice tips, which definitely made a huge change in my overall performance, in my workout, in my energy levels. And you speak also highly about that how one needs to keep the routine, what kind of food one needs to eat. Would you give us some कुछ आप इस बारे में बात करेंगे, just a tad bit? Definitely, मैं ज़रूर बोलूँगा कि nutrition plays a very very important role. Yeah. Nutrition is like a fuel to your body. जो आप energy की बात कर रहे हो, nutrition will provide that fuel. But also there's one more aspect to it that जो हम अभी discuss कर रहे थे ना, putting your body under extreme pressure every day. Yeah. So अगर आप वर्कआउट कर रहे हो ये सोच के कि मेरे को आज मैंने शुरू किया एंड आज ही मैं 5 किलोमीटर की दौड़ लगा लेता हूँ, आज मैं 5 किलो आज ही लूज कर लूँ, तो वो चीज़ इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज आपकी बॉडी अभी शुरू कर रही है, वो टाइम हो गया था, वो जिसको हम एक वो फॉर्मूला कहते हैं ना, इनर्शिया जो हमने किया है. अगर आपकी बॉडी एक रेस्ट पे है, आपको उसको धक्का लगाने पे थोड़ा टाइम लगेगा. अगर आप एकदम से धक्का लगाओगे देयर विल बी अ जर्क, पर आप धीरे से अगर उस पर उठ के यू जस्ट से कि आई विल टेक वन स्टेप एंड स्टार्ट स्लो. आपने बोला ठीक है आज मैंने शुरू किया, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग फॉर यू गो फॉर 100 meters ऑफ वॉक, गुड इनफ, एटलीस्ट यू कवर्ड द डिस्टेंस. Maybe tomorrow you'll go for 200, and that's how you increase. And उससे क्या होगा, you will feel good about yourself. You will feel that at least I have achieved to level 1. बहुत बार हम क्या करते हैं, हम level 0 से कोशिश करते हैं level 10 पे jump मारने की. The chances of falling is more. Yeah. And then once a person gets injured और वही जैसे demotivate हो जाते हैं, it gets very difficult to get back again. But वही अगर हम बनाए कि हमें 10 पे पहुंचना है, but it's the journey which we always have been talking since the beginning of this discussion also. Level 1 पे जाना is more important. जब आप level 1 पे पहुंचते हो, then the chances of falling is less, and slowly and gradually you start enjoying the process because you see that your body is responding well to what you want to do. Yeah, exactly. So I know, gradually one should gradually reach to their goal and don't overexert your body. So like we spoke earlier also that why rest is also important if you are working out, because the maximum healing happens during the rest phase. So gradually take one step at a time, take care of your nutrition. You can always talk to any kind of sports nutritionist if you want to, make it into next level or want to achieve certain kind of goal, because of course nutrition plays a huge role. But the most important thing is that your goal should be to remain healthy. आपको ये ध्यान रखना है कि आप internally healthy हो, because once you are internally healthy, your organs are healthy, your mental health is healthy, everything shows on the physical appearance. So yeah, you have to be happy, healthy, and take one step at a time gradually. Thank you so much. Weight loss becomes challenging for a lot of us. In fact, weight loss मुश्किल इसलिए भी हो जाता है because a lot of people we get stuck in a weight loss plateau, जहाँ से आपका weight कम ही नहीं होता, एक certain उस पे आके अटक जाता है. We just saw the beautiful journey of Nihal. She did fabulously. She achieved the goal which she wanted to achieve. So let's hear it from Nihal herself. Hi Nihal, how are you? Hi, I'm good. How are you? मैं ये पूछना चाहती हूँ निहल, बिकॉज यार बहुत सारे लोगों को वी हैव दिस क्रेविंग ऑफ शुगर, मीठा खाने की, एंड उस चीज़ को कैसे डील किया, लाइक मीठा खाना को कंट्रोल कैसे किया आपने? मीठे की क्रेविंग्स तब होती है जब आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है. सबसे पहले आपको अपने डाइट पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है. सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ प्रोटीन इनटेक. व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग प्रोटीन ना प्रॉपरली एट ऑल द मील्स, तो आपको उससे क्रेविंग्स काफ़ी कम हो जाती है. तो आपने प्रोटीन कैसे अपना डिवाइड किया, आपने खुद कैसे कंट्रोल किया इसको? तो बेसिकली वेन एवर आई एम हैविंग एनी मील, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, देन आई मेक श्योर दैट मैं हर मील में प्रोटीन हो, कुछ ना कुछ प्रोटीन हो.
तो व्हेन आई स्टार्ट ईटिंग प्रॉपर प्रोटीन ना, तब मेरे को वो क्रेविंग्स होती नहीं, बिकॉज आई एम फुल मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड उसके अलावा देर इज़ वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप प्रॉपरली पानी पीते हो तभी भी आपको ये सब क्रेविंग्स नहीं होती है। एंड फिर भी अगर हो रही है तो देन आई चूज़ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स, लाइक आई एम नॉट assuming that I have sugar, I use stevia, या फिर I use some natural things like jaggery. So this is how I control. Wonderful. So as Nihal spoke that protein is really important source. So हम क्या करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, हमें भूख लगती है, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से रिप्लेस कर दें देन आपकी भूख अपने आप कम हो जाती है, बिकॉज प्रोटीन इज़ अ हाइपोथर्मिक, जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक प्रोटीन रहता है एंड फुल एनर्जी धीरे धीरे रिलीज करता है। सो हैविंग अ प्रोटीन इज़ अ वेरी गुड आइडिया। रिप्लेस योर मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट विद प्रोटीन एंड मे बी कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम कर दीजिए। द सेकेंड विच शी टोल्ड अबाउट दैट हैविंग लॉट्स ऑफ लिक्विड्स, वाटर, यस, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर। जब आप एक वेट लॉस जर्नी में होते हैं, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट लिक्विड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू वांट टू मेक श्योर आपकी बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट्स कम ना हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी ऑल्सो हर्ड दैट किस तरीके से इन्होंने शुगर को रिप्लेस किया विद नेचुरल थिंग्स लाइक स्टीविया, जैगरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। निहाल, एक और बहुत चैलेंज जो बहुत सब लोगों को आता है इज़ मिडनाइट मंचिंग। आपने डिनर तो कर लिया, पर डिनर के बाद जो भूख लगती है, एंड ज़्यादातर वेट लॉस चैलेंज जो करते हैं उनको ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आपने कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया? तो बेसिकली मेरा रूटीन ऐसा सेट है कि मतलब आई स्लीप वेरी अर्ली, आई स्लीप अराउंड 10 o'clock, ठीक है? ओह वाओ, ठीक है। तो आई फॉलो द रूल ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, ओके, एंड आई हैव माई लास्ट मील एट 6 एंड आई स्लीप बाय 10 o'clock, ठीक है। बट लाइक फॉर दोज पीपल हु स्लीप वेरी लेट, तो उनके लिए ये रिकमेंडेशन है दैट दे शुड चूज हेल्दी ऑल्टरनेटिव लाइक मखाना और चना, दे कैन हैव दैट instead of having junk food, ठीक है। and also if they are willing to lose their weight, then they should change their sleep cycle. Exactly. So yeah, lovely practice. I mean, work with your circadian rhythm. Basically, सूरज जब उगता है उसके साथ खाना शुरू करो, and when sun sets, then maybe you can stop eating. That works wonderfully. It worked wonderful for Nihal. And if you are also hungry, अगर midnight आपको snacking करनी है, so apart from makhana which she had experienced on her own, I also suggest to my patients that cutting down some kiwis and having some kiwis, or in fact थोड़ा सा little bit of cheese also works wonderful. So kiwi has an excellent property जो कि आपके नींद को भी boost करता है, apart from being very good with the vitamin C. So yes, you can include some kiwis before sleep. And why cheese? Because cheese, a good source of cheese, has got good fat. So जब आप एक छोटा सा पीस का चीज़ लेते हैं, डेफिनेटली आपका इंसुलिन नहीं बढ़ रहा, बिकॉज आपकी कैलोरीज डेफिनेटली बढ़ रही है पर इंसुलिन नहीं बढ़ रहा। एंड आवर मेन criminal, I'll say, is insulin. So we have to balance that. So Nihal, एक और लोगों को दिक्कत आती है because lot of people, they are not able to शुरू नहीं कर पाते, कहते अरे हमारे को ये करना है, and they come up with various reasons. So how did you decide that ठीक है, मुझे now I'm taking this challenge, I'm taking this plunge and I'm going to do it? How did you do that? तो बेसिकली हुआ ये था दैट एट द एज ऑफ 22 आई स्टार्टेड हैविंग नी पेन। मतलब इस एज में नी पेन होना इज़ अ वेरी बिग थिंग, राइट? That's terrible. So and I was experiencing a lot of body shaming and I was in my college, so I faced a lot of that. But then I just started कि ठीक है मैं try तो करती हूँ, but because since my very childhood I tried so many times and I totally failed, क्योंकि सही नहीं था बिल्कुल भी, कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं थी, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस टाइम आई जस्ट थॉट कि नहीं, आई शुड ट्राई अगेन, ठीक है। आई ट्राइड, उसके बाद मेरा 10 kg बहुत ईजीली लूज़ हो गया, एंड जस्ट देन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब तो नहीं छोड़ना है, मतलब एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो आई वॉज वर्किंग आउट एट 1 AM 12 AM बिकॉज ऑफ माई कॉलेज रूटीन, बट आई जस्ट थॉट कि अब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वर्कआउट करना ही करना, हाँ करना ही है। एंड बीच में बहुत सारे ऐसे फेजेस हैं जिसमें मेरा वेट रुक गया है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस फेज़ में भी मतलब इट लास्टेड फॉर अबाउट 1 month 2 months, बट आई डेंट स्टॉप। That's the spirit. You just need to be like for a month you need to be consistent, and जब आपका खुद का रिड्यूस होना स्टार्ट होता है, आपको खुद को लगता है ना कि नहीं अब आई कैन डू इट, अब आपका हो सकता है, तो दैट्स द ओनली पॉइंट। आपको अच्छा फील होने लगता है, तब तक आपको अपने आप को पुश करना है, दैट्स ऑल। हाँ,
हाँ, तो बस वही point। सेल्फ मोटिवेशन का यही सबसे बड़ा कि जब आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं देन आपको अच्छा लगता है, देन यू आर एट दैट पार्ट, राइट। सो क्या आपने इसके साथ साथ कोई सप्लीमेंट भी इंक्लूड किया जो बिकॉज एक सर्टेन काइंड ऑफ डाइट रिजीम आप फॉलो कर रहे हैं तो कई बार बॉडी थोड़ा लैक ऑफ एनर्जी लगने लगती है, सो डिड यू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट, वुड यू? या बेसिकली सो आई एम अ वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक कम होता है। Absolutely. सो आई इंक्लूडेड प्रोटीन पाउडर एंड उसके साथ मैंने विटामिन सी सप्लीमेंट इंक्लूड किया एंड हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड B12 बिकॉज मोस्ट वेजिटेरियंस हैव इट। सो आई इंक्लूडेड दैट सप्लीमेंट एज वेल। तो ये सप्लीमेंट्स मैंने ऐड किए थे एंड बाकी मेनली इज ऑन डाइट। तो या आई मेड श्योर दैट आई एम फॉलोइंग अ प्रॉपर डाइट। दैट्स लवली। सो आई एम श्योर आपको निहल की जर्नी से बहुत सारे टिप्स मिले होंगे एंड अगर आपको वेट लॉस प्लेट्यू में अगर आप अटके हैं एंड इफ यू वांट मोर गाइडेंस यू कैन डेफिनेटली राइट अस एंड we will make sure that you get the right kind of guidance which would help you with your weight journey. Thank you so much. एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी सीखते हैं आज। एज यू नो कि समर सीजन चल रहा है एंड निहल ने क्या है निहल ये मैंगोज ओके chia seeds and we have almonds। ओके चिया सीड आई थिंक ये पानी में सोक करके you've kept it overnight। ओके चिया सीड एंड which is amazing source of vitamin D3, you know that, and we have also some cut almonds and it's source of healthy fats। oh lovely, and इसके साथ ही we add some sweetener and which is honey। okay honey and this is add some milk। so क्या करने वाले हैं आप? हम सबसे पहले हमने सोक किए हैं chia seeds वाटर में, ठीक है? Okay, okay। अब हम इसको ग्लास में ऐड करते हैं। ठीक है, इसको कितना भी डाल सकते हैं, there's no limit to it। we can add 2 to 3 tablespoons of chia seed। okay अब हम next ऐड what? करेंगे थोड़ा मिल्क इसमें। मिल्क okay कितना मिल्क आप ऐड करेंगी? let's just pour it fast। Okay, good done। I think that's the technique, when you pour it fast you get it quick। now we'll gonna mix this up। okay this is already looking lovely, मैं तो ऐसे भी पी सकती हूँ। अब हम ऐसा ऐड करेंगे थोड़ी टॉपिंग्स। सबसे पहले हम एडिंग सम almonds to it। okay so almonds are again a very good resource of good fats, good omega 3s। अब हम ऐड करेंगे मैंगोज which are in the season। and mangoes are fabulous and इतना अच्छा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड होता है मैंगो से। लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द विटामिन सी एंड द ब्यूटीफुल कलर व्हिच इट एड्स। ओके And finally some sweetener, I'm adding honey। सो हनी कितना ऐड करना चाहिए? 1 tablespoon is fine। okay but I think if you want to add more one can add more। Yeah but then again the calories। nice So it's done। and can we give it a star? All right। Amazing, I think this looks awesome, it's nice, chill, beautiful looking, as you can see there's orange color, black color, we have almonds and in a white swimming pool, it is looking lovely. I can't wait to drink it. Thank you so much, Nihal. Thank you। So, we spoke about yoga, we spoke about various other kind of workout, but one of the latest workout which is really getting really popular, blame it to the celebs or blame it to the reality which is actually very beneficial for you, is Pilates. We hear so many kind of workouts. There are floor Pilates, there are reformer Pilates, and this is one kind of workout I really love it. So we have today Sumit with us, who is going to tell us the difference between Pilates and a regular gym workout or aerobics. So hello Sumit, how are you? I'm all good, yes. Great. So Sumit, tell our audience that what is the difference between gymming and doing a Pilates? Okay, so Pilates is basically a mat floor workout in which we majorly focus on the core strengthening and your body stability, mind and body connection.
So in gym, basically what we do is we lift weights and all, but we don't focus majorly on the stability side and plus the muscle sides, plus your muscle imbalances create while you're doing the workouts. Acha. So, but in Pilates, we do focus all these things. So you can say it's a small baby of physiotherapy. So we I like the word small baby of physiotherapy. Yeah. So like you will not get injured while doing Pilates. Yeah. In fact, we do it in a safe way. We do all the exercises slightly on a safer side. So any age group can do Pilates. So it's not mandatory like for sedentary, like you can do it, you can't do it. Even if you are injured or if you have any issues with the body, you can also do that. Oh, lovely. In fact, I really liked the word which you said that it's a, the baby of physiotherapy. Physiotherapy. Yeah, I mean that's a fabulous way to explain. And majorly, you are right that Pilates में जो मसल्स है वो छोटे छोटे मसल्स भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जिम में यू माइट बी फोकसिंग ऑन द लार्जर और द बिगर ग्रुप ऑफ मसल्स. सो या दैट्स द वेरी मेन इम्पॉर्टेंस और द डिफरेंस ऑफ पिलाटेस. अच्छा, ऑल्सो टेल मी सुमित, बिकॉज ज़्यादातर देखा गया है कि पिलाटेस ना लड़कियाँ ही करती हैं. आप जितने भी जगह पे चले जाओ, जो भी देख लो, और हर जगह आपको लड़कियाँ पिलाटेस करती हुई दिखेगी. इज देयर एनीथिंग दैट पिलाटेस इज फॉर वुमेन ओनली और मेन कैन आल्सो डू? नहीं, it's a workout, it's not gender specific. Okay. So कोई भी कर सकता है इसको, any age group, anyone, even child also can do it, even mother also can do it, husband, anyone, any age group. Why it is so that all the girls are doing pilates? Because उन्होंने ही प्रमोट कर रखा है इसको, because as you said earlier, it's like celebs and all, so उन्होंने प्रमोट किया, तो girls majorly focus on all these things, toning and all, and plus जो मेल हैं बेसिकली उनका फोकस रहता है स्ट्रेंथनिंग पे, ज़्यादा फोकस रहता है कि लिफ्ट वेट करें, थोड़ा गेन करें उस चीज़ के अंदर. बट गर्ल्स का इतना वो फोकस नहीं रहता है कि हाँ ज़्यादा वेट्स लिफ्ट करें या वो करें. तो आई समवेयर फील कि उस वजह से भी बॉयज़ थोड़ा अवॉइड करते हैं इस चीज़ें करने में. बट अवेयरनेस आ चुकी है नाउ. जो इसके फादर हैं बेसिकली पिलाटेस के, जिन्होंने जो लेके आते पिलाटेस को, विच इज़ जोसेफ पिलाटेस. सो वो खुद एक मेल हैं. सो उस पर डाउट करना ही मुश्किल है कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी और कोई और नहीं कर सकता इस चीज़ को. आई थिंक वही जैसे फैट जैसा बन गया है दैट ऑल द गर्ल्स आर डूइंग, सो एवरीवन इज फॉलोइंग. बट क्या लेडीज़ इसलिए भी ज़्यादा करती है पिलाटेस बिकॉज उन्हें मसल गेन नहीं करना होता? और क्या पिलाटेस से भी मसल गेन होता है या फिर इट्स ओनली अबाउट बीइंग लीन? नहीं, पिलाटेस का पर्पस वो है ही नहीं. एज आई सेड अर्लियर आल्सो कि ये एक बेबी और फिजियोथेरेपी है. सो जब आप पिलाटेस करते हो, यू फोकस ऑन योर होल बॉडी, एवरी सिंगल जॉइंट, एवरी सिंगल मसल. सो उसके ऊपर हमारा पूरा वर्कआउट रहता है ये बेस्ड. जिम्स के अंदर क्या होता है कि ठीक है आप स्ट्रेंथ कर रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो वेट, देन यू फोकस ऑन योर प्रोटीन इनटेक एंड एवरीथिंग. तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है. यहाँ पे हमारा फोकस टोनिंग के ऊपर ज़्यादा रहता है कि आपकी मसल टोन कितना इंक्रीज हो रही है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितना इंक्रीज हो रही है, आपकी जॉइंट मोबिलिटी कितना इंक्रीज हो रही है. सो यहाँ फोकस गेनिंग नहीं है बट ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ योर बॉडी. अच्छा, सो बेसिकली अगर आपको बल्कअप करना है तो आप जिम जाओ, और अगर आपको अपने छोटे माइन्यूट मसल्स पे काम करना है, अपना ब्रीदिंग कंट्रोल करना है, अपने पूरे पोस्चर को ध्यान रखना है, देन पिलाटेस इज फॉर दैट. ऑल्सो पिलाटेस में मैं ये भी सुनती हूँ बिकॉज मेरे खुद के जो पिलाटे टीचर हैं, एंड आई एम श्योर आप भी एग्री करेंगे, दैट पिलाटे इज अ फॉर्म कि जहाँ आप मूवमेंट करते हो छोटे मसल्स के साथ, एंड साथ ही साथ आपका ब्रीदिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? सो ब्रीदिंग वहीं आ जाता है आपका माइंड एंड बॉडी कनेक्शन. सो उसमें आपका ब्रीदिंग भी रहता है. फॉर एवरी मूव यू नीड टू ब्रीथ अकॉर्डिंगली टू द मूव ओनली. सो ऐसा कुछ नहीं कि आप बिना ब्रेथ के यू स्टार्ट डूइंग ईच एंड एवरीथिंग. सो जहाँ पे भी आपका कॉन्ट्रैक्शन आएगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, यू बेसिकली ब्रीथ आउट. हम पिलाटेस जब करते हैं व्हेन यू स्ट्रेच, आप ब्रीथ इन करते हो उस टाइम पे. सो ब्रीदिंग का तो है नहीं, हाँ आप योगा ले लो, चाहे पिलाटेस ले लो, कुछ भी ले लो आप, पर ब्रीदिंग तो आप वर्कआउट करोगे तो भी इंपॉर्टेंट है. इवन इफ यू आर डूइंग जिम, वहाँ पर भी उसका इंपॉर्टेंस है. बट अगेन द नॉलेज थिंग, उनको पता नहीं है कि कहाँ क्या करना है, ये चीज़ बहुतों को नहीं पता होती कि जिम में भी आपको अपने वहाँ पर भी है वो चीज़ यार, वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़. एंड जिम ट्रेनर्स अगर आप देख लो तो जिम ट्रेनर्स वो खुद तो वर्कआउट कर ही रहे होते हैं, बट वो खुद भी थोड़ा कहीं ना कहीं इंजर्ड हो रखे होते हैं. दे ऑलवेज बी इन सम पेन. कभी उनका नी में दिक्कत है, कभी हिप में दिक्कत है, कभी उनके नेक में दिक्कत है, कभी सब उनके शोल्डर्स अप एंड डाउन मिलेंगे. आप ट्रेनर्स को देखना, दे ऑल स्टिफ लाइक दिस. तो एग्जैक्टली अभी तो नहीं बट लेटर ऑन स्टेज पे कहीं ना कहीं पे दे ऑल बिकम स्टिफ.
एंड धीरे धीरे वो आपको जॉइंट इश्यूज लाना स्टार्ट करता है, फिर वो हमारे पास आते हैं। सो आई थिंक इनफैक्ट आपने बीच में बोला दैट यू नो पिलाटेस आपके मसल हीलिंग, आपके बोन हीलिंग, बेसिकली रिकवरी में भी बहुत Yes, अच्छा काम yes, करता yes. है। यू नो मैं somebody who is known to me, उन्होंने she got badly, उनका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह हुआ था and she recovered herself only by doing Pilates and of course medications and things like that. So जहाँ यू नो डॉक्टर्स ने बोला था दैट यू नो आपकी रिकवरी बहुत लॉन्ग टर्म है, आप 7-8 साल लग जाएंगे, उन्होंने अपने को 2 साल में कर लिया था। सो क्या ऐसे मिरेकल्स आप भी देखने को मिलते हैं आपको या डेफिनेटली जैसे मैंने बोला पिलाटेस एक फिजियोथेरेपी का बेबी है। हाँ। सो आप इसको एक तरीके से रिहैब फॉर्म में भी ले सकते हो। सो इट्स अ स्पोर्ट्स रिहैब ऑल्सो। इसमें क्या होता है, आप कभी इंजर्ड हुए हो या आपको कभी नी इश्यूज़ आए हैं, आपको बैक इश्यूज़ वगैरह आए हैं, बैक में कोई भी इश्यूज़ वगैरह है, आपको साइड का पेन्स वगैरह आए हैं, लोअर बैक इश्यूज़ वगैरह हैं, कुछ भी आप कह लो उसमें, तो पिलाटेस एक रिहैब की तरह काम करता है। इट्स नॉट लाइक कि आप आए और ठीक होके चले गए। Right. जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे, वो आपको एक प्लान देगा फॉलो अप करने के लिए आफ्टर देयर थेरेपीज कि हाँ ठीक है, अब उससे ज़्यादा ठीक नहीं कर सकता वो आपको सिर्फ एक थेरेपी दे सकता है। उसके बाद में मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है, देन यू नीड टू कम बैक टू अगेन द बेसिक्स विच इज़ फिजियोथेरेपी, योर पिलाटेस और एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट। बट पिलाटेस इज़ रिकमेंडेड बेस्ट कि आपको कोई इंजरी हुई है, लोअर बैक इश्यूज़ हुए हैं, नी इश्यूज़ हुए हैं, आप पिलाटेस करिए, बिकॉज उसमें हम एक रिहैब की तरह उसको लेके चलते हैं, प्रोग्रेसिव वे रहती है आपकी। तो मेरे अकॉर्डिंग इट्स बेस्ट फॉर्म अगर आपको रिकवरी करनी है तो इट्स अमेजिंग। एग्जैक्टली एंड ऑल्सो यू नो इसलिए भी आप बिकॉज अगर जब आप पिलाटे करते हो तो आप एक पर्टिकुलर बॉडी के मोशन पे आप अटेंशन पे कर सकते हो। तो सपोज अगर आपको नी पे यू नो नी को आपको अपनी नीज को स्ट्रॉन्ग बनाना है या नीज पे आपके रप्चर है कोई, सो यू नो आपकी एंटायर बॉडी स्टैग्नेंट रह सकती है एंड आप एक नी पे माइंडफुली वर्क कर रहे हो व्हेन यू आर डूइंग while holding your core, so आपकी पूरी बॉडी भी इधर उधर नहीं हो रही, जो कि probably जिम में you know इधर से उठा रहे हो, उधर से गिर रहा है। so जिस तरीके से योगा के वेरियस आसन्स होते हैं, उनके नाम होते हैं, पिलाटेस के भी कुछ नाम होते हैं, कोई पोस्चर्स वगैरह के? मतलब अगेन ये भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, तो हर एक जो भी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उसमें सो बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह जो होते हैं हमारे उसमें हम भी उसको फॉलो करते हैं। अच्छा। इसके अंदर भी एक्सरसाइज वगैरह के नाम होते हैं। So ये मैं आपको इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आज आप यू नो हमारे जो लिसनर्स है, जो ऑडियंस है, उनको घर बैठे हुए 5 ऐसे एक्सरसाइजेज बताइए या फिर उनके नाम बता दीजिए हमें, सो दैट यू नो वो घर से कर पाए। एंड आई एम श्योर एंड आगे इसी वो वीडियो पे यू आर गोइंग टू फाइंड कि किस तरीके के पिलाटे मूव्स आपको करने हैं। वेरी सिंपल ईजी 5 मूव्स जिनके डिस्क्रिप्शन वो थोड़ा अभी देंगे, बट यू आर गोइंग टू सी, थोड़ा सा फॉरवर्ड करिए एंड गोइंग टू सी द वीडियो ऑल्सो। So in Pilates we majorly focus on the core. So अगर Pilates को describe भी कई बार करते हैं तो ये कहते हैं कि आपका core stability बहुत होना चाहिए इसके अंदर। So overall हम core के ऊपर बहुत focus करते हैं। अगर आपका core weak है तो आपकी overall body भी weak है somewhere। मतलब core stable नहीं है तो आपका lower back issues आएंगे, core stable नहीं है आपको hip issues आएंगे, core stable नहीं है आपको back पे back ache वगैरह या neck में issues वगैरह आएंगे, आपके shoulder up and downs रहेंगे, आपके knees में issues आएंगे, hips में issues आएंगे। सो सब कुछ डिपेंड करता है आपके कोर स्टेबिलिटी के ऊपर, तो हम इसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर मैं एक्सरसाइजेस की बात करूं, सो हम पिलाटेस के अंदर हम लोग वर्क करते हैं डेड बग, एक एक्सरसाइज का नाम है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज अगर आपको अपने कोर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं या कोर से रिलेटेड आपको इम्बैलेंसेस वगैरह आपके बॉडी में क्रिएट हो रहे हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करिए। सो डेड बग्स होता है आपका, प्लस इसके बाद आपका टेबल टॉप पोजीशन हमारे होती है। टेबल टॉप के अंदर हम बर्ड एंड डॉग स्ट्रेच करते हैं, एंड देन वी हैव बो स्ट्रेच एक्सरसाइजेज वगैरह, एंड देन वी हैव बेयर पोजेस आल्सो, प्लस वी डू जैक नाइफ, सिजर्स and mountain stretch, planks. That's a lot of you know it's a lot of exercises. Yeah, I mean that's wonderful. You know इतने सारे exercises है इसमें. It's amazing how Pilates works on our body. So you know before we end the show, just give us one important tip about Pilates, which you know maximum लोग सिर्फ Pilates के उसमें फैट की तरफ फॉलो कर रहे हैं, but they might not be knowing it any kind of. Okay, so पहले ही बोला मैंने, it's a baby form of फिजियोथेरेपी। सो ये एक रिहैब प्लान की तरह चलता है एंड आपकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर वर्क करता है। प्लस इसमें एज आई सेड कोर स्ट्रेंथनिंग इज द मेन थिंग। सो इफ योर कोर इज स्ट्रॉन्ग, योर ओवरऑल बॉडी इज स्ट्रॉन्ग।
सो आई से कि हाँ पिलाटेस यहीं डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि आपका कोर पे हम बहुत वर्क करते हैं सो दैट आपका पूरा बॉडी जो आपका स्ट्रक्चर है वो बैलेंस्ड रहे, स्टेबल रहे, आपके पोस्चर्स बहुत क्लियर रहे एंड यू कैन डू योर डे टू डे एक्टिविटी ईजिली एंड कंफर्टेबली। Perfect. So now we know so much about Pilates. So what is the difference between the gym, Pilates and yoga? Pilates is the new form of workout. Not so new right now because it has been there since a lot of years now. But yeah, this is the workout where you are taking care of all your muscles from head to toe. Why head? Because your mind is also involved, your breath is involved, and each and every tiny muscle is involved. So it's a lovely form of workout. Do check out that if you have any kind of back problem, knee problem or anything. Pilates will definitely work for you. Thank you so much.